Hi everybody. Good afternoon. Please ping me if I am clearly audible. Very well. And screen visible, running and moving. I see only 8 participants other than me. Okay, no problem. So guys, last time we were doing this decision tree, and within decision tree we looked out at various aspects. It is a fantastic algorithm which is nowhere based on geometry. It is entirely based on various conditions and logic, and depending on those, it keeps on doing several iterations. Step by step, it moves on from condition to condition, and finally it reaches a decision. Can we quickly recall? Some advantages of decision tree model? Could you give me quickly? One each, and it will be done. You saw that, right? There were several advantages. Number one, yes, can handle categorical variables as they are. Second, immune to outliers, immune to the curse of taste. Very fantastic. What else? Very fine. Take care of multicollinearity by itself. It is inherent. Okay. Then there were a few more. However, let's come to the disadvantage of decision tree model. What were they? Ah, all in all, there was one major problem, which was overfitting on training data.
due to which we gave him an ill name. What was that? That you are a greedy learner. You are a greedy algorithm. Right? Yeah, this was one disadvantage. Then we talked about what can be done to overcome this disadvantage. अभी तक हम जितने भी मॉडल देख रहे हैं, we have always tried to do what? We have tried to emphasize on advantages and tried to mitigate the disadvantages. Right? Same things we did earlier. यार जहाँ ये सारी प्रॉब्लम थी, कहाँ थी? रिग्रेशन मॉडल्स में आउटलायर भी थे, स्केल्स भी थे, मल्टी ठीक है, उनके डिसएडवांटेज थे, देयर वर लिमिटेशंस, बट वी ट्राई टू टेक केयर ऑफ दैट, राइट? We played some tricks and we developed some, we did something, some street smart things to overcome that. सेम गोज फॉर दिस। यहाँ भी हम वही कोशिश करेंगे कि एडवांटेज तो मुझे मिल जाए इसकी सारी, ये जो डिसएडवांटेज है इसका कुछ इंतजाम हो जाए। तो हाँ जी, क्या सोचा था उसके लिए? यस, वी डिसाइडेड टू, मेजर आइडिया क्या था, ये ओवर फिटिंग होने की टेंडेंसी रखता है, ये बिल्कुल कम से कम डेटा पे पहुंचने की कोशिश करेगा, चाहे डेटा कितना भी कम क्यों ना रह जाए, ये जाने की कोशिश करेगा वहां तक। हम कह रहे हैं इसको अगर वहां तक ना जाने दिया जाए, ये अननेसेसरी ऐसा ना हो कि दो चार वैल्यूज देख करके अपना डिसीजन बताने लगे। लेट्स लेट्स नॉट लेट्स रेस्ट्रिक्ट इट to a certain depth. Let it not go all along. Let it not go by its will. उसका तरीका क्या था? We had a function which controls recursive partitioning. यही सोचा था। अरे बोलो, मैंने बोला भी था कि चेक करके देखना इसको। देखा है क्या किसी ने? सही बताओ, बी ऑनेस्ट, डिड यू ट्राई वेरियस पैरामीटर्स? हम्म। हम्म। कुड यू मेक सेंस आउट ऑफ दैट? मैंने कुछ चीजें बोली थी, क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं? One is max depth, that's one. Then there is min split, and then there was min bucket, if you identified that. Yes or no? यही बात कर रहे थे। And then there was something called, if you tried, you must have known, there is something called CP. अगर देखा होगा हेल्प में तो, if you were really trying, those who tried, they must have discovered it. तो चलो इनको समझेंगे एक करके। इससे पहले मैंने कुछ और भी कहा था आप लोगों से, ये यही प्रॉब्लम होती है जब मैं सबमिशन नहीं मांगता हूँ आप लोगों से, you people get laid back, सफर में आ जाते हो। मैंने आप लोगों से कुछ और भी कहा था, बिकॉज इसका एक और बड़ा स्पेशल एडवांटेज था। What was that? What was that? What was that?
It works for all types of target. अरे टारगेट कैसे कैसे होते हैं आपके? एक तो लॉजिकल टारगेट, जिन पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करता है, तो वो तो हमने कहाँ देख लिया, हार्ट वाले डेटा सेट पे, जहाँ हार्ट डिसीज डिटेक्ट कर रहे थे हम। और क्या हो सकता है? मल्टीनोमियल हो सकता है, इसको हम लॉजिकल ना बोल के बायनोमियल बोल देते हैं, बिकॉज कीवर्ड वही था। मल्टीनोमियल भी कर सकता है, लाइक आई गेव एन एग्जांपल, iris dataset, and I asked you to run it by yourself. iris dataset का टारगेट क्या हुआ? स्पीशीज अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ स्पीशीज, तो मल्टीनोमियल टारगेट हो गए। देयर वर 3 स्पीशीज ऑफ आइरिस फ्लावर, और उनको 3 स्पीशीज में मैं कैटेगराइज करना चाह रहा हूँ, मल्टीनोमियल हो गया। डोंट नो इफ यू हैव डन। देन देयर कुड हैव बीन कंटीन्यूअस टारगेट। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि डायमंड्स वाले डेटा सेट पे ट्राई करें। Now, if you tried, you must have faced some problem. If there is any problem, do let me know. If there is no further problem, well, I can understand. I would take that. It means you have not done it. हाँ जी, ये करके देखे थे। Okay. I was coming on to something because due to this property, because it can work on all types of target, आपका टारगेट कैटेगोरिकल हो सकता है और कैटेगोरिकल में भी कैसा भी हो सकता है। प्लस इट वर्क्स all the same for continuous variable. So that is why many a times it is called card. तो कहीं लिखा मिल जाए, कोई पूछ ले, तो चौंकने की जरूरत नहीं है। कार्ड इज अनदर नेम फॉर डिसीजन ट्री। कार्ड स्टैंड फॉर व्हाट? कैटेगोरिकल एंड रिग्रेशन ट्री। क्योंकि अलग से कुछ भी एल्गोरिथम रन नहीं हो रहा है, डिसीजन ट्री रन हो रहा है और वही काम कर रहा है। तो आपका प्रॉब्लम कैटेगोरिकल हो, विच आर दीज, या चाहे रिग्रेशन हो। रिग्रेशन हम किसको बोल रहे हैं? जहाँ टारगेट कॉन्टिन्यूअस है एक तरह से, उसको हम रिग्रेशन बोल रहे हैं। रिलेशन, को रिलेशन हम देखना चाह रहे हैं ना कॉन्टिन्यूअस टारगेट का बाकी प्रेडिक्टर से, तो दैट इज नोन एज रिग्रेशन। It is not exactly categorical, it is actually classification. हाँ, क्लासिफिकेशन। अगर मैं बाइनोमियल टारगेट है तो मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ ना अपनी पॉपुलेशन को। इफ इट इज हार्ड डेटा सेट, आई एम क्लासिफाइंग एज disease or no disease. When it was Titanic, I was classifying as survived, non-survived. लोन डिफॉल्ट का प्रॉब्लम होता तो डिफॉल्ट, नॉन डिफॉल्ट। कस्टमर चर्न का प्रॉब्लम होता तो चर्न, नॉन चर्न। सेम गोज फॉर मल्टीनोमियल टारगेट। अगर टारगेट मेरा मल्टीनोमियल है, again I am classifying things. I am classifying the flowers in my validation data set. यहाँ कैसा क्लासिफिकेशन हो रहा है? मल्टीपल कैटेगरीज में हो रहा है, सेटोसा, वर्सिकुलर, वर्जिनिका। इफ आई हैव टू क्लासिफाई लाइक इन ABCD, then ABCD classification हो रहा है। That's classification. Regression means target is continuous and you are checking correlation of this target
like diamond's price with all other ratios. ठीक है जी, तो भविष्य में हम इसको कार्ट ही बोलेंगे. Usually आपको कार्ट is a popular term, so you will come across this time and again. Now, before I begin discussing this, if you have really run these things, okay, maybe you have run, maybe you have not run. Questions first. Sure, I want to spend some 10-15 minutes on questions before I move any further. So there should not be a pile on from last lecture. Okay. वत्सल, बहुत कुछ समझ नहीं आया. चलो, समझ, वेरी फाइन. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट सारा कुछ समझ नहीं आना चाहिए. आप कुछ पूछे मेरे से. अभिलाषा, यू गॉट प्रॉब्लम. वेरी फाइन. प्लीज गो ahead. Maybe switch on the mic. You don't need to type everything. अब कंट्रोल मेथड छोड़ दो. आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल. आई नीड क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज फॉर नाउ. मल्टीनोमियल टारगेट और कॉन्टिन्यूअस टारगेट, इन पे कुछ क्वेश्चन हैं, तो फिलहाल उसकी बात करते हैं. दिस हाईलाइटेड सेक्शन और मे बी हार्ड प्रॉब्लम ऑल्सो, अगर उसमें भी कुछ है तो. कंट्रोल पैरामीटर्स की बात अभी करूंगा डिटेल में. फॉर दैट आई हैव सेकंड वन. Hi sir, Vatsal this side. सर मतलब मेरा व्हेन आई ट्राइड प्रैक्टिस ये डायमंड वाली डेटा सेट, तो फिर जब मैं मॉडल बना रहा था तो मतलब मेरे को उसमें ये समझ नहीं आया कि मेरे को मॉडल किस अकॉर्डिंग बनाना है. तो जो जैसे टाइटैनिक वाला डेटा था तो उसमें हमारा कंडीशन ये था ना कि इफ द पर्सन डाइड और ही वाज अलाइव. तो डायमंड वाली डेटा सेट में पता ही नहीं चला कि क्या किस बेसिस पे बनाना है. और अगर मुझे से ये भी समझ नहीं आता कि किस बेसिस पे डिसीजन ट्री जो आता है, जो फर्स्ट वो होती है, फर्स्ट लेयर होती है स्टार्टिंग वाली, किस बेसिस पे प्रेडिक्ट कर रहा है कि उसके आगे उसका मॉडल बनाता है ना, ऐसे ब्रांचेस मोड्स जो होते हैं. तो ये सब समझ ही नहीं आया मेरे को. और फिर कंट्रोल भी नहीं हुआ सर. वो आर आर पार्ट वाला, जो आर पार्ट कंट्रोल था, वो भी समझ नहीं आया कि क्या कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या हो रहा है. मेजर प्रॉब्लम. ओके. कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे एरर आता है. अभिषेक, क्या एरर आता है? फंक्शन कंफ्यूजन मैट्रिक्स सर, मेरे इसमें एरर आ रहा है मेरा. हाँ, तो एरर क्या आ रहा है? एरर में लिख के देता है ना वो क्या एरर है. यस अभिलाषा, सैंपल स्प्लिट में कुछ नहीं करना है. सैंपल स्प्लिट क्या करेगा, कैटेगरीज का रेशियो मेंटेन करता है. अब वो कैटेगरीज चाहे दो हो, सपोज देयर आर टू कैटेगरीज एंड दे आर इन रेशियो 60-40 इन अवेलेबल डेटा, तो सैंपल स्प्लिट ट्रेन और वैलिडेशन में भी उनको 60-40 के रेशियो में रखेगा. नाउ इफ इट इज मल्टीपल like iris data set, so there are three categories and suppose they are 30-40-30, तो सैंपल स्प्लिट वही काम करेगा. इट विल डू द सेम. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग सरप्राइजिंग.
अच्छा, हाँ, that is something. Now this question, this is really something which I wanted you to face. अभिषेक, अभिषेक कहाँ चला गया? कॉन्फिगर मैट्रिक्स पे एरर आ रहा है। अरे क्या एरर आ रहा था? बोलोगे? आर यू सर पीपल? यहाँ पे आ सर, डेटा मस्ट कंटेन सम लेबल। हेलो हाँ जी, सर, आर यू लिसनिंग? प्रॉपरली लिसनिंग, सर लाउड द एंड क्लियर। डेटा मस्ट कंटेन सम लेबल दैट ओवरलैप द। ये पता है क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है बिकॉज कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स में दोनों चीजें फैक्टर होनी चाहिए। कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स तब काम करेगा हाँ जब सर, दोनों मैंने दोनों चीजें चीज फैक्टर फैक्टर हैं। लिखा है। ये कौन से पे लगा रहे हो? ये डायमंड्स पे लगा दिया क्या कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स तुमने? हैं? यस सर, डायमंड में लगाया। डायमंड्स पे लगाया है? हाँ सर, डायमंड में किया था। सुधरोगे नहीं ना तुम? यस सर। डायमंड्स में टारगेट वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स थोड़ी बनेगी। अरे कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहाँ बनती है? जहां लेबल्स होते हैं 0 1 या ABC। जब कैटेगोरिकल होगा तभी तो कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाओगे। यस सर, सॉरी। यस सर, यस सर, सॉरी सॉरी सर। सर ठीक है, आर स्क्वायर कंप्यूट करो वहां पे। आर यू पीपल ट्राइंग टू ट्रिक मी इनटू सॉल्विंग योर प्रॉब्लम? Mean you want? Are you trying to do that? That I will run the code for iris and diamonds as well for you people, and you will copy paste? Well, maybe I will only if time allows. चलो देखेंगे। चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। लेट्स डू वन थिंग, इनको अभी रोकते हैं। मल्टीनोमियल और कॉन्टिन्यूअस की कहानी अभी देखते हैं। पहले कंट्रोल पैरामीटर समझते हैं। मेरे ख्याल से ये भी प्रॉब्लम होगा आप लोगों का, मोस्ट ऑफ लोगों का ये भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, getting back to that hard data set, यहाँ तक सब कहानी आप जानते हैं, कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, लेट्स कैच होल्ड ऑफ देम वन बाय वन। तो यहाँ तक सब चीज़ आप देख चुके हैं। इसके बाद हम क्या करते थे? ये कट ऑफ पैरामीटर, ये हमने हिट एंड ट्राई करना सीखा था। यस, देखा था। तो यूजुअली हम क्या कोशिश करते हैं, हम सेंटर पॉइंट लेते हैं सर मीन और मीडियन का, और इनके बीच की वैल्यू से करके देखते हैं। सेंसिटिविटी अगर कम होती है तो प्रोबेबिलिटी कम करते जाते हैं। सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी से ज़्यादा हो तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे। तो रादर देन 50% से हम हिट एंड ट्राई शुरू करें। लेट्स हिट एंड ट्राई विद मिड वैल्यू ऑफ दिस, और यहाँ से देखते हैं कि हमारी वैल्यू कैसे आ गई है। तो कैसी आ गई है? डिवाइडेड बाय 2, इट टेल्स दैट कट ऑफ कैन बी 28%। 28% हमने कट ऑफ लिया, तो कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारा शायद ठीक हो गया था। आई थिंक कट ऑफ तो हमें मिल गया था। ये तो तरीका हमने देखा था लास्ट टाइम। somebody was speaking in between. sorry for interrupting, sir. Yes. Yes, sir. What's this side? Sorry for interrupting again.
सर ये आपने अभी जो ये कमेंट्स में किया था कि ये जो डायमंड वाला डेटा सेट था इसमें हाँ। हमें डिसीजन ट्री नहीं लगाना था, मतलब ये डिसीजन ट्री वाला मॉडल यूज नहीं करना था। मॉडल डिसीजन ट्री यूज करना है, कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स नहीं बनाना होगा उसको। कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा भी नहीं। कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम क्या यूज कर रहे हैं, आई वांट टू वैलिडेट माय मॉडल इज ऑन कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो यहाँ पर कैटेगरीज हैं, हार्ट डिजीज है या नहीं है, यस और नो। तो ये असली बात थी, ये मेरे प्रेडिक्शन थे, यस और नो। तो यही तो बनेगा कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए तो और बहुत तरीके हैं मेरे पास। अरे समझ नहीं रहे हो, ओके सर। कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनेगा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल पे, एक बात बताओ। एक्चुअली किसी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की वैल्यू थी 30, मेरा प्रेडिक्शन आया उसके लिए 30.45। अब ये बताओ, क्या तुम इसको तभी ठीक मानोगे कि जब ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होंगे? एग्जैक्टली इक्वल तो बड़ा मुश्किल है होना। यार किसी चीज का प्राइस 30 रुपए था, मेरे मॉडल ने बोल दिया 30 रुपए 45 पैसे है, तो क्या मेरा मॉडल गलत हो गया? कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स गलत ही बताएगा उसको, क्योंकि तुम उसको कैटेगरी ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में ये नहीं देखते हैं, वहां पर कोरिलेशन देखते हैं, या मेप देखते हैं, या आरएमएसई देखते हैं, और बहुत तरीके हैं, वो देखेंगे। कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स तो तब आएगा जब कैटेगरीज होंगे आपके साथ। फिर सी जस्ट इन अ मेन वाइल, कोशिश करूंगा अगर टाइम बचा तो उस पर भी जाने की, रन करके दिखा दूंगा। नाउ वी आर ट्राइंग टू ट्यून द ट्री इन द सेंस बिकॉज by default your tree will try to go to as much depth as it likes। तो हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? 3 पैरामीटर हमने आपको हमने देख लिए थे, लास्ट टाइम ही देख लिए थे ये तो। दैट ट्री मॉडल मैक्स डेप्थ मीन्स, अगर मल्टीपल मैं यूज नहीं करूं, देखते हैं वन बाय वन। अगर मैं मैक्स डेप्थ बोलूं कि मैक्स डेप्थ इज 3, तो इट शुड नॉट गो टू अनलिमिटेड डेप्थ, पीआरपी। सो इट विल गो अप टू 3 लेवल्स, अनलिमिटेड डेप्थ तक नहीं जाएगा। और डिसीजन कैसे बताएगा? सपोज यहाँ पे अगली कंडीशन, अगर ये मैं इसको खाली छोड़ देता, अगली कंडीशन पे ये जाने वाला होता, तो अगली कंडीशन पे नहीं जाएगा। यहाँ पे डिसीजन कैसे बताएगा? यहाँ पर जैसे डेटा पॉइंट्स हों, सपोज यहाँ पर डेटा पॉइंट्स हों 50, तो इट विल सी कि 50 में से मेजोरिटी किसकी है, नो की है कि यस की। तो जिसकी मेजोरिटी होगी वो डिसीजन यहाँ पर दे देगा, रादर देन गोइंग ऑन इनटू 4th लेवल। दैट इज नेक्स्ट स्टेप। अदर देन नेक्स्ट स्टेप और क्या हो सकता था? मिन स्प्लिट हो सकता था। नाउ व्हाट डज मिन स्प्लिट मीन्स? मिन स्प्लिट का मतलब क्या हुआ? सपोज मैंने बोला मिन स्प्लिट इज इक्वल टू 30। अगर मैं पहले वाला मॉडल देखूं अपना, ये अनलिमिटेड डेप्थ तक जा रहा है, और मेरी प्रॉब्लम क्या थी, हर डेप्थ पे जाने के बाद डेटा पॉइंट्स कम हो जाते हैं। ये हमने देखा था। स्टार्टिंग में मेरे पास कंप्लीट ट्रेन डेटा था, से 200 वैल्यूज, 200 डेटा पॉइंट्स। अगले लेवल में कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ इधर जाएंगे कुछ इधर भी जाएंगे, तो यहाँ पर कम रह गए। अगले लेवल में फुल कुछ इधर निकल गए, तो यहाँ पर और कम रह गए। अगले लेवल में कुछ इधर चले गए, तो यहाँ पर और कम रह गए। यही होता था, यही तो हो रहा था, इसी से समस्या शुरू हुई थी। यस। मिन स्प्लिट क्या कहता है? मिन स्प्लिट कहता है, मैंने डिफाइन किया मिन स्प्लिट। सपोज
कहाँ गया, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया min split is 30. तो what does it mean is, suppose यहाँ पर डेटा पॉइंट्स रह गए 27. तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 30 से कम रह गए हैं डेटा पॉइंट्स तो अगला स्प्लिट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात? सपोज यहाँ पर 60 डेटा पॉइंट्स थे, इससे आगे चले ये 27 रह गया। तो इससे आगे अब स्प्लिट नहीं होना चाहिए। कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा डिसीजन ट्री। देख लेते हैं, आओ देख लेते हैं। दिस टाइम इट इज min split, run it, and the tree is, this time it is this. देखने में वैसा ही लग रहा है जैसा नेक्स्ट स्टेप से आया था, लेकिन लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट है पिछली बार से। पहले लॉजिक क्या था, बिफोर दैट द लॉजिक वाज हैमर। मेरे को 3 लेवल तक जाना है, इससे इससे अगली डेप्थ पे जाना ही नहीं है। सो आई कैन गो अप टू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 3, आफ्टर दैट आई विल नॉट गो। दिस टाइम द लॉजिक इज अ बिट सोफिस्टिकेटेड। आई एम सेइंग कम से कम 30 डेटा पॉइंट देख के तो डिसीजन लो। इससे भी कम रह गया तो ऐसा स्प्लिट मत करो, इससे आगे जाने का जरूरत नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? वो तो राइट ट्री कंट्रोल। यस से नो कुछ तो बोलो, यहाँ तक समझ आया? अब कुछ तो क्लैरिटी आ रहा होगा। ठीक है जी, अगला क्या था इससे? इससे अगला था एक मिन बकेट भी होता है। अब वो क्या चीज़ है? सपोज मेरा डिफॉल्ट ट्री ये था। अब की बार मैं कह रहा हूँ मिन बकेट इज 30। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हुआ पहले वाले से। अभी ये थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड हो गया है, जो हम पहले एग्जांपल ले रहे थे। सपोज यहाँ पर डेटा पॉइंट थे 60, और अब आगे क्या डेटा पॉइंट हुए? सपोज यहाँ पर रह गए 27। तो अब की बार ये पता क्या कह रहा है कि मिनिमम बकेट 30 का बनना चाहिए। यानी अब क्या हुआ, इसने बकेट बना के तो देखे, इधर 27 आ गए, इधर से 33 आ गए। लेकिन अब क्या कह रहा है, ये बकेट छोटा रह गया है जितना मैंने बताया था उससे। तो इस बार यहाँ तक भी नहीं जाएगा, इससे पहले ही टर्मिनेट हो जाओ। यानी स्प्लिट करके देखा, जब देखा कि बिन बकेट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, वापस इस स्टेप पे यहीं खत्म हो जाओ। ठीक है, कुछ एडवांटेज है इसका, छोटा सा एडवांटेज है कि रादर देन चेकिंग मिनिमम स्प्लिट, तो पहले हम इसका तो फैसला कर रहे थे लेकिन इसका नहीं कर रहे थे, तो दोनों ही तरफ चेक हो जाता है इससे। इधर भी डेटा पॉइंट मिनिमम इतने चाहिए और इधर भी डेटा पॉइंट मिनिमम इतने चाहिए। एक भी क्लास अगर छोटी बन रही है तो वापस पहले वाले स्टेप पे जाएगा और वहीं टर्मिनेट हो जाएगा डिसीजन देकर। सो इट इज अ बिट डिफरेंट देन दैट। Did the screen got still? Did the screen froze? Screen freeze? Is it so? Okay. Tell me this time. Just बता देना मेरे को. I'm drawing again. I'm drawing again.
हमने क्या देखा था अभी, डेटा पॉइंट 60 थे यहाँ तक, और यहाँ पर हमने देखा स्प्लिट करके, हमने देखा यहाँ पर 27 आ गए, तो स्प्लिट हो चुका है, इधर 33 गए, उधर 27 चले गए, स्प्लिट हो चुका है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्प्लिट करने के लिए 30 वैल्यूज भी नहीं बची हैं, तो यहाँ तक ये डिसीजन ट्री जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसे पकड़ मत लेना उसे कि पहले तो छोटा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। दैट वॉज मिन स्प्लिट। मिन बकेट क्या कहता है, मिन बकेट थोड़ा सा अलग कह रहा है बात को। मिन बकेट अब क्या कह रहा है कि मिन बकेट इज 30, यानी अगर चलो यहाँ पर 60 डेटा पॉइंट थे, बड़ी अच्छी बात है, स्प्लिट तो कर लो, लेकिन क्या स्प्लिट करने के बाद जो ये बकेट बने हैं, आर दे 30 ईच? तो इन दिस केस इट विल हैपन, यहाँ पर 33 आए और यहाँ पर 27 गए, वैसा ही सिनेरियो हो जाता है, लेकिन दिस टाइम कॉन्स्टेंट इज डिफरेंट, इट इज नॉट मेन स्प्लिट, इट इज मेन बकेट। तो ये क्या कह रहा है, अच्छा बकेट वैसे नहीं बन पा रहे जितना हमने मिनिमम बोला था, तो ये वाला स्टेप भी एग्जीक्यूट मत करो। गॉट द जस्ट, मिनिमम मेन स्प्लिट के केस में कम से कम यहाँ तक जा रहा था, उसकी कंडीशन क्या थी कि मिनिमम इतने होने चाहिए, इससे कम रह गए हैं तब रुकना है, लेकिन कम से कम यहाँ तक वो आ जाता, अगर ये होता क्या, मिन स्प्लिट। बट नाउ इट इज मिन बकेट, वो क्या कह रहा है कि मिनिमम बकेट तो इतना बनना ही चाहिए, अगर बकेट इतना नहीं बन रहा तो क्या कर रहा है ये, एक स्टेप आगे जाएगा, तो बना के तो देख रहा है बकेट, लेकिन जब उसे डेटा पॉइंट नहीं मिले 27, तो वापस चला जाएगा पहले वाले स्टेप पे और यहीं टर्मिनेट कर। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। Yes, it will happen on all the sites. On each condition, this condition will be tested. तो अब की बार देखें ट्री कैसा बनता है। इस बार मैं बकेट बोल रहा हूँ, देख रहे हो लगभग सारी कंडीशन ही हटा दी उसने, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर दिया। तीनों पैरामीटर का काम समझ आया, मैक्स डेप्थ कैसे काम करता है, मिन स्प्लिट कैसे काम करता है, इनके मतलब क्या क्या हुए, इतना तो समझ आया। ये बात समझ आई। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे डिसाइड करूं कि कौन सा लेना है। कैसा डिसाइड, अच्छा अभिलाषा क्वेश्चन डाल दी तुमने, अभिलाषा देख ले, तू टाइप कर रही थी, मैं बोल रहा था, दोनों वही बात कर रहे हैं। कैसा डिसाइड करोगे कौन सा पैरामीटर यूज करना है, और कैसा डिसाइड करोगे कि इसका वैल्यू होना कितना चाहिए। अगर सपोज एक चीज तो ये समझे कि अगर मैं ट्री की डेप्थ को कंट्रोल कर रहा हूँ, जब ये अनलिमिटेड डेप्थ तक जा रहा था तो ये कुछ एक्यूरेसी दे रहा था, शायद 84 समथिंग है ना, ऐसे कुछ दे रहा था। अगर मैं इसे अनलिमिटेड डेप्थ तक नहीं जाने दूंगा तो इन अ वे आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एक्यूरेसी, यस और नो। यार क्या पता अगली डेप्थ पे जाने पे मेरा रिजल्ट एक्यूरेसी बढ़ जाती, लेकिन रादर देन गोइंग टू दैट मच एक्यूरेसी, मैं ओवर फिटिंग से बचना ज़्यादा जरूरी समझता हूँ, सो दैट मेरा मॉडल एक्यूरेट हो जाए, नॉट एक्यूरेट, स्टेबल हो जाए। जरा सा भी अगर अनफोर्सिन डेटा आया टेस्ट डेटा में तो मेरा मॉडल गलत प्रेडिक्शन ना देने लगे, बिकॉज इट वॉज ओवर फिटेड ऑन ट्रेन डेटा। दिस वॉज आइडिया, बट एनीवे आई विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिट ऑन एक्यूरेसी, मे बी 84 की जगह मुझे शायद 80% रिजल्ट मंजूर करना पड़े, पर ठीक है, कम से कम वैलिडेशन में 80% दे रहा है, तो अनसीन डेटा पे भी 80 नहीं देगा तो 78 तो देगा। अननेसेसरी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ देखने में तो 84 लग रहा था, जब अनसीन डेटा आया तो सीधे 65 पे गिर पड़ा या 64 पे गिर पड़ा, ऐसा नहीं हो। तो मैं कोई सा भी पैरामीटर क्यों ना यूज़ करूँ इनमें से,
यार नेक्स्ट स्टेप मैंने सोचा 5 बोलूं, तो मुझे क्या पता 6 लेवल पे जाने से मेरी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी हो जा रही थी, मैं 5 पे रुका। और अगर मैंने सोचा नेक्स्ट स्टेप 10 कर लेता हूँ, तो क्या पता मेरा ट्री वैसे भी 8 लेवल तक ही जाने वाला था। ओवरफिटिंग तो पहले ही हो चुकी, नेक्स्ट स्टेप लिख के क्या लिख लिया तुमने, कोई फायदा नहीं हुआ। समझ पा रहे हो नेक्स्ट स्टेप की प्रॉब्लम? लगभग ऐसी ही कहानी इनकी भी है। मैं कैसे डिसाइड करूं कि मिन बकेट 30 का रखूं? 30 का अभी देख रहे हो, 30 का मतलब डिसीजन ट्री खत्म हो गया तुम्हारा, खत्म तो हो गया डिसीजन ट्री। तुम कह रहे हो पेशेंट से पूछो पेन टाइप कौन सा है, अच्छा पेन टाइप ऐसा बताया तो फ्लोरोस्कोपी करा लो, फ्लोरोस्कोपी कराते तुम कह रहे हो ठीक है अब हम बता देंगे यस नो हार्ट डिजीज है कि नहीं है। देखना इसका रिजल्ट कैसा आता है, देखें इसका रिजल्ट क्या आएगा। पीआरपी प्रेडिक्शन एचडी, वही 28 ले लें अगर कट ऑफ, चलो देख लेते हैं करके, क्या पता, क्या पता। ये देख रहे हो, बैलेंस तो कर ली तुमने, लेकिन बैलेंस करके पाया क्या बैलेंस करके? दिस इज द बेस्ट बैलेंस यू कुड हैव अचीव्ड। समझ रहे हो क्या हुआ? डिसीजन ट्री कंट्रोल तो हुआ, लेकिन एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो गई। अब कंट्रोल इतना ज़्यादा हुआ कि एक्यूरेसी कितनी कॉम्प्रोमाइज हो गई? आई थिंक इट इज़ 10-12% कॉम्प्रोमाइज। 10-12% in a practical scenario, it is a, it is chunk. Really, it is chunk. सही बात है, बोलेंगे। तो इसका मतलब डिसीजन ट्री शायद इतना कंट्रोल नहीं करना चाहिए था मेरे को, जितना कर दिया मैन बकेट ने। तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो फिर ये डिसाइड कैसे करूँ, ये 30 से होगा या किससे होगा? इफ यू आर गेटिंग द जेस्ट, अब कहीं और कहानी पे आ रहा हूँ। ये सारे तरीके अवेलेबल तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियोज में दे आर, you will need a hell lot of experience to try these, to work with these. To be on the safer side, this is the parameter on which we rely on. देखा था किसी ने सीपी पैरामीटर, आर पार्ट कंट्रोल में होता था कुछ? क्या होता है सीपी? What does CP stands for? Yes, its formal definition is, by formal definition, it is called complexity parameter, and in slang, many people you will hear it, people calling it cost of partitioning और कॉस्ट पैरामीटर, ऐसा भी बोल देते हैं। अभी समझते हैं इसका मतलब हुआ क्या। लेट्स गेट बैक टू बिगर क्वेश्चन। जो हमने पहले बात करके छोड़ दी थी, आज थोड़ा सा उसे समझने का कोशिश करते हैं। थिंक अबाउट इट, इसने डिसाइड किया पेन टाइप 1 2 3, मतलब कहने का क्या हुआ, जब हमने डिफॉल्ट ट्री बनाया था उसके कहने का मतलब है पेन टाइप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू डिसाइड हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा। पेन टाइप के बाद एसटी डिप्रेशन सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे जेंडर, देन कोलेस्ट्रॉल एंड ओके जाता जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन,
according to your decision tree. Then this, then this, then can you think of what is the parameter? ये किस बेसिस पे इसने डिसाइड किया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्या दिखा उसे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्या हुआ होगा? Any estimate, guesstimate? Entropy. Oh my goodness. अरे कहाँ से ढूंढ लिया ये? बड़ा खराब आदमी होता है ये, इसका नाम नहीं लेते ऐसे। चलो बात करते हैं इनकी दोनों की। Remember, I am trying to explain this CP parameter. See, it brings us to the notion of entropy and homogeneity. There are two things, entropy, other is homogeneity. And in a way, entropy is inversely proportional to homogeneity. रिमेंबर, अरे 6th-7th क्लास में पढ़ा था ये एंट्रोपी की डेफिनेशन, केमिस्ट्री में आई थी। याद है ना वो टाइम जब साइंस की बुक 3 जगह बट गई थी? अब अलग अलग होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों की अलग बुक, तीनों के अलग लेक्चर। उस समय कहीं बात हुई थी इसकी। क्या होता है एंट्रोपी? बाय केमिकल डेफिनेशन, बिग बैंग थ्योरी देखा है किसी ने, या सुना है एटलीस्ट? It all started with a big bang, and after that the entropy of universe is constantly increasing. है ना, सुना है ना, पढ़ा है ना ये थ्योरी? There are two contradictory theories about how universe started. One of them is Big Bang, and these are the only two theories. They are mutually they are contradicting each other, but all the scientists across the globe believe this or that. Usually there is no third theory. They are into two chunks. So Big Bang has its own significance. So according to that, entropy is constantly increasing. Entropy by definition is a measure of randomness. How much randomness is there? Homogeneity on the other hand. तो homogeneity इसका उल्टा होता है। Homogeneity का मतलब क्या हुआ? There is something homogeneous about them. There is something similar about each class. So let's get the idea of homogeneity. इसने कैसा डिसाइड किया कि पेन टाइप सबसे अच्छा होगा? थिंक अबाउट इट। अगर मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन हो, आई हैव अ टेस्ट, आई एम कॉलिंग इट टेस्ट एक्स। एक ऐसा वेरिएबल होता टेस्ट एक्स कि बस मैं उसे चेक कर लेता कि इस पैरामीटर की रीडिंग 10 से कम होती है
तो हार्ट डिजीज नहीं होती, और 10 से ज़्यादा होती है तो हार्ट डिजीज होती है। एंड दिस इज दिस इज वेरी फैंटास्टिक टेस्ट, और इसके अलावा मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है। परफेक्ट प्रेडिक्शन देता है, तो कितनी अच्छी बात होती। यस और नो, कितनी अच्छी बात होती। ना एल्गोरिदम की ज़रूरत है, ना मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत है। एक टेस्ट कराना है, रीडिंग आ जाएगी, पता चल जाएगा। तो ये रीडिंग कैसे आई होगी, इसका मतलब ये टेस्ट कैसा काम करता है कि जितने भी लोगों को हार्ट डिजीज नहीं होती उन सबको एक तरफ डाल देगा। एन 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 एन। सही बात है। परफेक्ट होमोजेनिटी, सारे के सारे एन इधर, और दूसरी तरफ क्या हुआ है, जितने भी हार्ट डिजीज निकलने वाली थी जिन लोगों को, ठीक है, कम होंगे ज़्यादा होंगे, जितने भी होंगे वो सारे के सारे एक तरफ। परफेक्ट होमोजेनिटी, परफेक्ट क्लासिफिकेशन। तो कितनी अच्छी बात होती, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा टेस्ट तुम्हें मिलेगा नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या जरूरत थी मेरी, क्या जरूरत थी तुम्हारी, और क्या जरूरत थी डॉक्टर्स की। फिर तो पैथोलॉजी लैब ही बताते हैं ना सब कुछ। तो हमारा डिसीजन ट्री क्या कर रहा है, इट इज डूइंग समथिंग स्मार्ट। हमारा डिसीजन ट्री क्या कहता है कि होमोजेनिटी ठीक है, परफेक्ट तो नहीं आई, लेकिन मैक्सिमम जितनी आ सकती है वो तो आए। वो किस टेस्ट से आ रही है। तो हमारे डिसीजन ट्री को क्या दिखा होगा कि पेन टाइप से मैक्सिमम होमोजेनिटी अचीव हो जाती है। पेन टाइप पे कंडीशन लगा लो तो परफेक्ट तो नहीं आएगी शायद। कैसी आ जाएगी, कुछ वाई आ जाएंगे इधर। कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको एक्चुअली हार्ट डिजीज था, लेकिन फिर भी चलो मैक्सिमम नो तो उसने इधर की है, कुछ वाई आ गए इधर इस टेस्ट के बेसिस पे। सेम गोज फॉर इधर, दैट साइड। मैक्सिमम वाई उधर चले गए, कुछ एन भी मिक्स हो गए, लेकिन चलो जितनी आ सकती थी उतनी तो आई। सो मैक्सिमम जितनी अटेन कर सकता है वो किस टेस्ट से होगी। एंड थिंक अबाउट इट, ऐसा टेस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। यार अगर कोई परफेक्ट दे रहा होता तो बड़ी अच्छी बात थी। यस और नो। अरे जा रहा है कानों में, या लुढ़क गए। अच्छा अभी जा रहा है, चलो ठीक है। हाँ बात करते रहो मुझसे। अरे तुम्हारे चक्कर में लंच नहीं करता हूँ मैं। हाँ मुझे डर लगता है कहीं मैं निपट गया तो तुम तो मुझसे पहले तैयार रहते हो। ठीक है, तो गॉट द आइडिया राइट। अगर कोई ऐसा हाइपोथेटिकल टेस्ट होता जो परफेक्ट होमोजेनिटी देता तो उसे ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते। अब ऐसा टेस्ट उसे बेचारे को मिला नहीं कोई, तो जो मिला उसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है। उससे उसने सबसे पहले क्या किया कि जितनी होमोजेनिटी आ सकती है उतनी ले आओ। अब क्या करेंगे, हाँ जी, नेक्स्ट कंडीशन। अब इतने डेटा पॉइंट है, तो नेक्स्ट कंडीशन किस पे लाएगा, अब इसमें से जो अच्छी से अच्छी होमोजेनिटी ले आए। कुछ वाई मिक्स हो गए एन के साथ, तो अब अगली कोशिश क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एन इधर चले जाएं, और अब जो ये वाई थोड़े बहुत इधर आ गए थे ये बाहर निकल के कहीं इधर चले जाएं, और स्टेप बाय स्टेप ये होमोजेनिटी इंक्रीज होती चली जाए। ये कोशिश रहती है डिसीजन ट्री। समझ आ गई बात, यहाँ तक तो समझ आया। तो दोनों तरह से बात कर सकते हैं इसको। मैं कह रहा हूँ होमोजेनिटी इंक्रीज होती चली जाए स्टेप बाय स्टेप। एंट्रोपी के टर्म्स में बात करूंगा तो मैं क्या करना चाहूंगा, एंट्रोपी डिक्रीज होती चली जाए स्टेप बाय स्टेप। तो एंट्रोपी की बात अभी नहीं करते, थोड़ी सी देर में करेंगे। पहले होमोजेनिटी से ही समझते हैं। होमोजेनिटी मेजर, ये वाला रिपीट कर दीजिए, कौन सा वाला रिपीट कर दूं। अरे लाल वाला काले वाला, मैं बताया तो ढंग से करो कम से कम।
ऐसे बोल रही हूँ, मैं कपड़े के थान दिखा रहा हूँ जैसे। एक बार और दिखाना। माइक ऑन कर लेना मनीष, बताना क्या रह गया, क्या बताऊँ? अभी करूँगा मैं तो, और बहुत डिटेल में बात करनी है अभी तो इसकी। सेकंड वाला क्लासिफिकेशन, अच्छा सेकंड लेवल पे जो होगा। अच्छा, देखो पहले लेवल पे क्लासिफिकेशन ये कर लिया, ये कोई कंडीशन लगाई, उसने देखा पेन टाइप से सबसे अच्छा सेग्रीगेशन आ रहा है, मतलब इससे ज़्यादा होमोजेनिटी आ नहीं सकती। यस और नो को सेग्रीगेट करना था, इससे अच्छा नहीं आ पा रहा है, कुछ मिक्स एंड मैच होगा ही होगा, लेकिन सबसे कम मिक्सिंग इसी से हो रही है, तो उसने वो कंडीशन पहले ले ली। अब नेक्स्ट लेवल पे उसकी कोशिश क्या होगी, इसे भी इम्प्रूव करें ना, यही तो कोशिश होगी कि यहाँ पर ये जो मिक्स एंड मैच हो गया है, यहाँ पर जैसे सपोज देयर आर 10 नो एंड 3 वाई, तो अगले लेवल पे क्या कोशिश होगी कि ये 10 नो इधर जाएं और ये 3 यस इधर चले जाएं, यही तो कोशिश होगी। शायद अब भी परफेक्ट नहीं मिले, शायद ऐसा हो के 9 नो और 1 यस इधर आ गए और 2 यस और 1 नो इधर चला गया। अगर ऐसा हुआ तो अगले लेवल में फिर कोशिश करेगा परफेक्ट सेग्रीगेशन करने की। एंड दिस इज अ टेंडेंसी विच ट्रिक्स माय मॉडल इनटू गोइंग इनटू अनलिमिटेड डेप्थ। यही उसकी टेंडेंसी है, इसी वजह से अनलिमिटेड डेप्थ तक जाने की टेंडेंसी रखता है वो। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझा। सेग्रीगेशन पैरामीटर इन द सेंस वेरिएबल यू आर आस्किंग कि ये पेन टाइप रहेगा, ये कोलेस्ट्रॉल रहेगा या क्या रहेगा। हाँ तो वो तो हमने देखा भी है, देखो ना, डिसीजन ट्री देखो ना तुम अपना, ये रहा। पहले लेवल पे पेन टाइप से सबसे अच्छी आ गई, तो दूसरे लेवल पे वो चेक कर रहा है तो शायद अब एसटी डिप्रेशन से सबसे अच्छी आ रही होगी, तीसरे पे चेक कर रहा है तो शायद जेंडर से आ रही होगी, एंड सो ऑन। हैविंग सेड दैट, क्या वो एक पैरामीटर को दो बार यूज कर सकता है? हाँ कर सकता है, देखो कोलेस्ट्रॉल को यहाँ भी कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है, तो कर भी सकता है, सेम ब्रांच में भी कर सकता है। हो सकता है होमोजेनिटी कोलेस्ट्रॉल की इस कंडीशन से पहले सबसे ज़्यादा रही हो, अगली कंडीशन फिर कोलेस्ट्रॉल पे ही लगी हो कि इस बार लेस देन 100 है क्या, ये चेक कर लो। बिल्कुल कर सकता है, उसको होमोजेनिटी से मतलब है। ठीक है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि एक ही ब्रांच में मल्टीपल टाइम्स चेक करे वो किसी वेरिएबल को, लेकिन कर भी सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। उसकी टेंडेंसी है ऐसी, होमोजेनिटी इंक्रीज करने से मतलब है उसे, और कुछ नहीं दिखता उसको। ठीक है जी, यहाँ तक भी ठीक ठाक चले। डू यू नीड ब्रीदिंग टाइम? आई एम गुड, आई एम गेटिंग इनटू समथिंग नेक्स्ट लेवल, आगे चलूँ। So the major idea behind this is, इवेंचुअली हमें क्या चाहिए, अंततः अंततो गत्वा क्या चाहिए हमें, होमोजेनिटी से मतलब है उसको। अब होमोजेनिटी नापेगा कैसे? हाँ बस अभी 2 मिनट के अंदर ब्रेक दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जस्ट सम फ्यूल टू कीप रनिंग योर ब्रेन्स, तो थोड़ा सा फ्यूल देके छोड़ूंगा। एक बात बताओ, मैंने एक वेरिएबल ढूंढा, मेरा डिसीजन ट्री क्या कह रहा है, इससे क्या होता है, 10 नो इधर आ जाते हैं, 2 यस इधर आ जाते हैं, 10 यस 10 नो इधर आ जाते हैं, 25 यस इधर आ जाते हैं। एक सिनेरियो, सो दिस इज वेरिएबल 1।
कि वेरिएबल 1 पे मैंने कंडीशन लगाई, दिस इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल 1 कि वेरिएबल 1 कांस्टेंट सी से कम हो तो इधर जाओ उधर जाओ, और डेटा पॉइंट ऐसे ऐसे चले गए। सिनेरियो 2 इज, अब मैं क्या कह रहा हूँ, कोई और वेरिएबल है, वेरिएबल 2 पे अगर मैं कंडीशन लगाऊं दैट वेरिएबल 2 इज लेस देन डी, और ये क्या मेरे को क्या सिनेरियो देता है, ये मेरे को सिनेरियो कुछ ऐसा देता है कि 15 नो इधर चले जाओ, 3 यस इधर चले जाओ, 5 नो इधर चले जाओ, एंड मे बी 20 यस इधर चले जाओ। कहने का मतलब समझे? मुझे नहीं पता, अभी मेरा डिसीजन ट्री बना नहीं है, मैं तो वैसे ही देख रहा हूँ। एक तरीका तो ये हो सकता है, मेरे डिसीजन ट्री के पास एक चॉइस है कि वेरिएबल 1 पे कंडीशन टेस्ट करे, तो स्प्लिट ऐसे ऐसे हो जाते हैं, इतने नो इधर यस इधर, और इतने नो और यस इधर। वेरिएबल 2 पे कर लूँ तो इतने यस नो इधर और इतने यस नो इधर। किसे समझूं कि होमोजेनिटी किससे बेटर आ रही है? क्या लग रहा है तुम्हें? व्हाट डू यू थिंक कि होमोजेनिटी किससे बेटर आ रही है, और कैसे नापोगे इसे? गेटिंग गेटिंग द जेस्ट? अरे सेकंड मत बोलो इतनी जल्दी, करवा लूंगा अभी तुम्हारे हाथ से ही। होमोजेनिटी तक का फंडा समझ आया कि होमोजेनिटी देखता है वो। अब मैं तुमसे कुछ और पूछ रहा हूँ कि होमोजेनिटी देखता है तो देखता कैसे है? सपोज उसने दो वेरिएबल टेस्ट करके देख लिए और ऐसे ऐसे डेटा पॉइंट स्प्लिट हो रहे थे, तो अब किसे माने कि इसकी होमोजेनिटी बेटर आ रही है? तो वी नीड समथिंग मेजरेबल, रिमेंबर? हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे ये मेजर हो सके कि अच्छा ये डेटा पॉइंट्स ऐसे ऐसे स्प्लिट हो रहे हैं, तो इसकी होमोजेनिटी को हम इतना बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 0.5 बोलेंगे, 0.6 बोलेंगे, 0.3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समथिंग लाइक दैट, यस। So I need something tangible, something measurable quantity which will measure the homogeneity in various splits. तो उनको हम क्या क्या कहते हैं? One of them is entropy. Entropy is measurable. Another one is Gini index. और एंट्रोपी से ही डिराइव होता है, we call it information gain, IG coefficient, or simply information. ठीक है, अब कर लेते हैं ब्रेक। बढ़िया, अभी समझेंगे कि ये क्या क्या होते हैं और कैसे इनको कैलकुलेशन करें। ठीक, so it's 3 almost, it is 3:38, okay, almost 3:40 by my clock. So I think 10-12 minutes would suffice. So we resume at 3:50. Okay, be back on time and see you there. Freshen up, stretch yourself. Hi again. Hope everybody is back. Those who are here, please ping me quickly. Only a few people. Not all responding, either not responding or they are not here. Okay, anyway, I shall continue. It has been a break long enough. So what is the calculation of Gini index?
You got the idea, right? हमारा ट्री कैसे बनता है? होमोजेनिटी के बेसिस पे। इट डिसाइड्स कि किस पैरामीटर से होमोजेनिटी सबसे अच्छी आती है। अब वो होमोजेनिटी मेजर कैसे करेगा? सो आई नीड समथिंग टू मेजर होमोजेनिटी। So the measures of homogeneity which can be are Gini, entropy, and entropy is not a measure in itself. We reach information gain. We derive information gain from entropy. Let's see what is the calculation behind it. I have sent you a mail which contains an Excel sheet. So just download it and maybe you will be able to calculate along with me. This is the formula to calculate Gini index, and we will see okay, what does it mean basically. It is summation of probability square of, if my target class is 1 and 0, the probability of 0 square plus probability of 1 square in each class, जो भी सेगमेंट हुए हैं। यार यही थी ना कंडीशन हमारी, वेरिएबल, ये तो कंडीशन थी। इसने दो सेगमेंट बनाए होंगे, ऐसे और ऐसे। तो ये वाला सेगमेंट तो बना जहां वेरिएबल सी से कम है, ये वाला सेगमेंट बना जहां वेरिएबल सी से ज़्यादा है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे 1 कितने आए टोटल में से, उसका रेशियो स्क्वायर, और यहाँ पर 0 कितने आए टोटल में से, उसका 0 स्क्वायर। ये बात हुई एक साइड की। फिर दूसरी साइड चलते हैं। सेम गोज फॉर द सेकंड स्टेप ऑल्सो। तो दिस इज फॉर दिस पार्टीशन, देन दिस इज फॉर दिस पार्टीशन, और अभी देखते हैं उस एग्जांपल से, ठीक है। सो दैट इज जेने इंडेक्स या गेने इंडेक्स एज दे से इट, people call it differently. Here, got the idea? This is the Excel sheet which I have sent you. Let's understand the meaning of this. Everybody got this right? नहीं मिली हो तो बता देना। So there are some, it is data of some 100 employees. There are 100 employees, and just for the sake of ease of calculation, मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास दो ही तरीके हैं अपने ट्री को स्प्लिट करने के। सपोज आई वांट टू कैलकुलेट प्रमोटेड, कि किनका प्रमोशन होगा और किनका नहीं होगा। तो मेरा टारगेट वेरिएबल है प्रमोशन, वेदर प्रमोटेड और नॉट प्रमोटेड। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज मैं सिर्फ दो ही वेरिएबल मान के चल रहा हूँ। लेट्स कंपेयर कि इससे बेटर स्प्लिट आता है या इससे बेटर होमोजेनिटी आता है। होमोजेनिटी किससे बेटर आएगा, ठीक है। अजित, यू डिड नॉट रिसीव। अजित, हैव यू बीन एब्सेंट रिसेंटली? Hello. Yes, sir. Last weekend I am not attend the class. Okay, drop me your email ID. Perhaps it usually doesn't happen, but okay, might be the case. और कोई नागेंद्र, प्लीज ड्रॉप मी मेल आईडी। जिनको नहीं मिला है प्लीज ड्रॉप मी द मेल आईडी, ड्रॉप मी योर मेल आईडी क्विकली।
So Ajit and Nagendra, only two missed. Okay, please check your mail. I hope you will receive it in a minute or two. Okay, बाकी लोग, you people got the you people are getting the context right. What is the context of the problem? We want to create a decision tree जहाँ target is promotion होगा कि नहीं होगा, और हम देखना चाह रहे हैं कि वो homogeneity कैसा decide करेगा. Gender पे split कर दे, male and female, एक तरफ male चले जाएं, एक तरफ female चले जाएं, यही तो होगा. तो उससे homogeneity better आता है, या age से decide कर लें. Suppose हाँ, एज पे डिसाइड कर लिया उसने कि अप टू 50 एक तरफ चले जाएं एंड अबव 50 एक तरफ चले जाएं. समझ गए आप यहाँ तक बात को? यहाँ तक तो समझ आ रही होगी बात सारी. तो देखते हैं होमोजेनिटी क्या होता है. अगर मैं गिनी इंडेक्स कैलकुलेट करने लगूं, गिनी इंडेक्स क्या होता था अभी देख लिया आप लोगों ने. इट वाज समेशन ऑफ पी स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी स्क्वायर ऑफ ईच क्लास ऑफ टारगेट वेरिएबल. चलो देखते हैं. टारगेट वेरिएबल था प्रमोशन और नॉन प्रमोशन. चलो देखो, सपोज मैंने ये 100 एम्प्लॉय को मैंने स्प्लिट किया बाय एज. तो आप बाद में देख लेना इसको काउंट करके, जिनको एक्सेल ठीक ठाक आता है वो कर भी पाएंगे इसको फिल्टर वगैरह लगा करके. दीज नंबर्स आर प्री फिल्ड. सपोज मेरे उसमें कुछ ऐसा हो रहा है, अबव 50 मैंने जो सेगमेंट बनाया, मैंने स्प्लिट कैसे किया, एज इज ग्रेटर देन 50. तो अबव 50 तो इधर आ गए सारे, सो दे आर ऑल अबव 50. और लेस देन इक्वल टू 50 वो सारे इधर चले गए होंगे. ऐसा ही तो हुआ है, ट्रेन डेटा ऐसे ही तो स्प्लिट होगा. चले गए जी. अब देखते हैं यहाँ पर येस नो कितना है. कुछ इनकी, कुछ यहाँ पर प्रमोशन येस हुए हैं, कुछ के प्रमोशन नहीं हुए हैं. तो प्रमोशन येस नो में डिवाइडेड है, इधर भी इधर भी. आइए देखते हैं पी स्क्वायर क्या होता है इनका. ठीक है, ठीक है जी. हमने देखा अबव 50 वाले सेगमेंट में टोटल थे 30. तो यहां बात कर रहा हूं इन दोनों में किसकी, अबव 50 वाले. इधर बात करेंगे अप टू 50 वालों से. अबव 50 में हमने देखा टोटल थे 30. तो 30 में से प्रोबेबिलिटी प्रमोशन होने की कितनी है? हाँ जी, कितनी है? टोटल 30 थे, 5 के प्रमोशन हुए हैं. तो प्रोबेबिलिटी स्क्वायर कितना हुआ यहाँ पर अबव 50 में? अबव 50, द ग्रीन पार्ट, फाइव डिवाइडेड बाय 30, यही तो हुआ. स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए था मेरे को, रिमेंबर. समझ गए, स्क्वायर चाहिए था. अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी नो का कितना हुआ अबव 50 में? ये इससे मत घबराना, दिस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड फील्ड. तो यहाँ पर वो कैलकुलेशन आती जाएगी. जैसे जैसे मैं वैल्यू एंटर करूंगा इनका टोटल यहाँ पर अपने आप टोटल हो जाएगा. इट इज जस्ट एडिंग दीज 4 सेल्स. ये पी स्क्वायर वाले टर्म्स को ऐड करता जाएगा. हाँ जी, प्रोबेबिलिटी नो कितना हुआ? टोटल 30 थे, जिनके प्रमोशन नहीं हुआ वो 25 थे. तो 25 डिवाइडेड बाय 30, लेकिन स्क्वायर भी तो था. वो कितना होता है? 0.694.
तो प्रोबेबिलिटी स्क्वायर ऑफ टारगेट क्लास हुआ इतना और इतना, लेकिन कब हुआ? जब ये अबव 50 थे, तभी हुआ ना अबव 50। तो I have to take that into account. You know, I am telling you the very tricky calculation. ये अगर करा ली तो रियली बता रहा हूँ इम्प्रेस कर दोगे वहां पर, अगर ये किसी ने करा ली और तुम ठीक से कर पाए। 90% ऑफ टाइम्स लोग गलत करेंगे इसको। अगर 90% भी कह रहा हूँ, आई एम बीइंग जनरस इनफ, उससे ज़्यादा ही लोग गलत करते हैं। And as usual, I have no intention to go easy on you. I will tell you the correct method. There are easy methods, then there are correct methods. पी आई स्क्वायर तो हो गया, लेकिन कब पी आई स्क्वायर? पहले ये भी तो देख लूं, कब पी आई स्क्वायर? व्हेन दे आर अबव 50। तो अबव 50 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे डेटा सेट में? हाँ जी, कितनी है? ये देखो कितनी है। टोटल एम्प्लॉयज 100 थे, उनमें से अबव 50 थे 30। तो पहले ये देखूं कि अबव 50 में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उन लोग, कितनी है? 30%? 30%? यस और नो? हाँ जी, तो ये जो पी आई स्क्वायर है, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन दिस क्लास फर्स्ट। अबव 50 में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30 डिवाइडेड बाय 100। इसका स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर किसका करना है? सिर्फ टारगेट क्लास की प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो दिस इज फाइनल रीडिंग ऑफ पी आई स्क्वायर एंड सेम गोज फॉर नॉन प्रमोशन स्क्वायर। आप समझ गए यहां तक? जरा दूसरी क्लास का ट्राई करेंगे। Yes, it is probability of being above 50 multiplied by now pi square, probability of promotion yes or no, उसके स्क्वायर्स। तो वो स्क्वायर्स तो ये हैं, उसमें above 50 वाला probability that will be multiplied as it is. What about this? up to 50 वालों का क्या करोगे? करके देखना जरा, जरा करके देखो, ऐसे ही इनका भी कैलकुलेशन करना है एंड टेल मी व्हाट इज द टोटल यू सी हियर and I'll tell you whether you have done something correct or not. Go ahead, I would like to see everybody's response. अच्छा, मीनवाइल कैलकुलेशन करते रहो। एवरीबडी प्लीज ड्रॉप अ प्रेजेंट इन द चैट बॉक्स फॉर योर अटेंडेंस सेक। प्लीज नोबडी शुड मिस दैट। देयर आर सम 13 people other than me, so I should see 13 present here. Please nobody should miss that. बाकी कैलकुलेशन कर लेना उसके बाद, पहले प्रेजेंट डाल दो। ओके, वेरी फाइन, डाल दिया प्रेजेंट। एवरीबडी इज सो इंटरेस्टेड टू ड्रॉप अटेंडेंस, यू नो दिस ट्रिक वर्क्स एवरी टाइम। अटेंडेंस की बात कर लो तुमसे, धनाधन रिस्पॉन्स आता है।
हाँ जी, अप टू 50 वाली कैलकुलेशन कर लो। नहीं, अलग अलग मत बताओ मेरे को, सीधे गिनी इंडेक्स बताओ। अप टू 50 वाली कैलकुलेशन पूरी कर लो और बताओ मेरे को गिनी इंडेक्स फाइनली क्या है। मोनिका हैज ड्रॉप्ड हर आंसर एंड मोस्ट प्रोबेबली इट इज करेक्ट। आई डोंट एग्जैक्टली नो, मैंने कैलकुलेशन किया नहीं है अभी, बट मैं दिखा दूंगा। फाइनल गिनी इंडेक्स कितना आया है? इतना तो नहीं होना चाहिए अभिलाषा, कुछ तो गलत कर रहे हो। आर यू टेलिंग मी ऑफ पी वाई स्क्वायर? नॉट पी वाई स्क्वायर, आई वांट इट टू बी फाइनल जीनी इंडेक्स कितना आता है, वो पूछना चाह रहा हूँ। गलत है या कुछ गलत हो गया है? हाँ, स्क्वायर तो ठीक है नागेंद्र, बट अभी अभी हमने बात की थी कि सिर्फ स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर तो चाहिए टारगेट क्लास का। आई हैव टू मल्टीप्लाई इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेगमेंट फर्स्ट। अप टू 50 में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इन लोगों की, वो भी अकाउंट में लेना होगा। वही बोल रहा हूँ, यही गलती करोगे मत करना जब मैनुअली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यू नो, फॉर एल्गोरिदम मैनुअल करना नहीं होता है आप लोगों को, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू मे रन इनटू सम टेक्निकल पर्सन, और वो अगर पूछ ले ऐसा। अच्छा, ऑलरेडी डन दैट, ओके, सीम्स गुड इनफ। चलो देखते हैं, जिनसे हो गया ठीक है, जिनको नहीं आया फिर से देखो एक बार। लेट्स वॉच आउट अगेन। वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट सो? कैन somebody confirm, is my voice clear? It is clear. So, might be your connection glitched. What's up? No problem. Okay, I will repeat. No problem. I will repeat this step once more. अब हम किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं? अप टू 50 वाले लोगों की, अप टू 50 वाले लोगों की, है ना? ये वाले लोग, ये वाले यहाँ पर जो गए हैं, इस वाले चंक में जो यस नो हुआ है। चलो देखते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, पहले तो पी, ओके, प्रमोशन यस के स्क्वायर देख लेते हैं। तो देखो, इनकी बात कर रहे हैं अब हम, इनकी और इनकी। टोटल 70 थे, 70 में से प्रमोशन कितने हुए हैं? 30। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, कितनी हुई? 30/70। प्रमोशन यस की प्रोबेबिलिटी हुई 30 डिवाइडेड बाय 70। यस और नो? और इसका स्क्वायर करना था, कर लिया स्क्वायर। लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं उस प्रोबेबिलिटी में। किस प्रोबेबिलिटी में? कि अप टू 50 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इन लोगों की, उसके बाद ही तो यस और नो हुआ है प्रमोशन। तो पहले ये देखें कि अप टू 50 में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वो कितनी है, वो कितनी है, ये देखो। टोटल 100 थे, उनमें से 70 लोग ऐसे हैं जो अप टू 50 कैटेगरी में जाते हैं, जिनकी एज अप टू 50 है। तो इस कैटेगरी में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इन 100 एम्प्लॉयज में से? आई थिंक 70 डिवाइडेड बाय 100। तो दिस बिकम्स फाइनल पी वाई स्क्वायर ऑफ अप टू 50 क्लास। अभी कुछ चमका? अभी कुछ चमका? तो नो की कैलकुलेशन जरा कर दोगे अपने आप, जरा बताना बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से। सब लोगों का आंसर आना चाहिए अभी। चलो मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ आप लोगों को। नो के केस में देर आर 40 पीपल हु आर नॉट प्रमोटेड आउट ऑफ दीज 70। तो पी एन स्क्वायर, ये तो हुआ कितना, 40 डिवाइडेड बाय 70। मुझे चाहिए था स्क्वायर, स्क्वायर बहुत अच्छी बात है, ले लिया। लेकिन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अप टू 50। पहले अप टू 50 वाली क्लास में तो आए, तब देखेंगे। तो ये कितने थे? 70 डिवाइडेड बाय 100।
100 में से 70 लोग थे जो अप टू 50 एज वाले थे, तो वो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड फाइनली द जीनी इंडेक्स इज 0.5738। तो फाइनली यही आ रहा है सब लोगों का, क्या कहते हो? एंड हायर द जीनी इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी होमोजेनिटी आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो आप डिसीजन ट्री बना रहे थे वो होमोजेनिटी मेजर जीनी इंडेक्स ही होता है। ठीक है जी, यहाँ तक बढ़िया समझ आ गया। कैन यू कैलकुलेट द जीनी इंडेक्स इफ स्प्लिटिंग बाय जेंडर हो रहा होता तो? हमने देखा एज से स्प्लिट करते हैं तो एक जीनी इंडेक्स आता है दैट इज 0.57 समथिंग समथिंग। मैं कह रहा हूँ अगर जेंडर से स्प्लिट करते तो जीनी इंडेक्स किसका आता, और जिसका ज़्यादा आता इसका मतलब उससे होमोजेनिटी बेटर आ रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, तो उससे पहला स्प्लिट वो उसके हो जाना चाहिए। यश and Monica giving same answers and almost simultaneously, and uh, possibly they have already solved it. What about others? Could you do that? It is good to see proactive people. This is one fine quality about whom? About me also. ऐसे तो नालायक आदमी हूँ मैं खैर, पर ये चीज़ अच्छी है मेरी। Yes, people, please give it a try and drop me what your answer is. If you split by gender, तो अगेन नीचे टेबल ऑलरेडी बना हुआ है आप लोगों के लिए फॉर यू पीपल। इट इज ऑलरेडी देयर एंड दिस इज अ प्री कैलकुलेटेड फील्ड ऑलरेडी। यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दीज प्रोबेबिलिटीज, एंड जस्ट टू गिव यू अ हिंट, यहाँ पर मैंने वो भी दिया है कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करने होते हैं, सो दैट यू डोंट फॉरगेट। सो ट्राई दैट आउट क्विकली। I need everybody to respond. Please do that quickly. I will have to make you calculate. You know, I am not going to leave you without it. अभी तक जितने आंसर आए हैं, आई थिंक इट इज यूनानिमस आंसर फॉर एवरीबॉडी, 0.67। When it is 0.67, it means किसका गिनी इंडेक्स बेटर हुआ? जेंडर से स्प्लिट करने में इसका मतलब होमोजेनिटी बेटर आ रही है। So first split should be by gender. So I was taking just an example. तो इस वजह से हमने सिर्फ दो ही वेरिएबल लिए थे और दो ही वेरिएबल का कंपैरिजन करके देखा है। एक्चुअली आपका वेरिएबल क्या, आपका डिसीजन ट्री क्या करता है, वो सारे ही वेरिएबल इसी तरह से टेस्ट करता है, जिसकी सबसे बेस्ट आती है वो सबसे ऊपर, देन सेकंड लेवल, देन थर्ड लेवल, एंड सो ऑन। Just imagine the calculation going on behind the screen, guys. Isn't it, isn't it magic? Isn't it miraculous? Yes, Vatsal. All of this happening simultaneously. कितनी देर लगी तुम्हें मॉडल बनाने में? है कि नहीं? तुमने तो सही गलत कोड लिखा और धड़ाक से एग्जीक्यूट मार दिया। उसकी जान को देख रहे हो कितना काम है?
ठीक है जी, गुड सो फार. सो दिस वाज गिनी इंडेक्स टू मेजर होमोजेनिटी. हाँ जी, ऑफ कोर्स इट इज. ये आपको कभी मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, वो तो डिसीजन ट्री कर देता है, एल्गोरिदम कर देता है, बी इट आर, बी इट पाइथन, जिससे भी आप बना रहे हो टूल से. It is just for your understanding that what is happening behind the screen. If you come across a really technical person, no, he or she will not be very much interested in कि तुम ये बताओ कि क्या कोड लिखेंगे और मैक्स स्टेप में मिन स्प्लिट क्या होते हैं. They will be very much they will very much like to know कि what is the mathematics behind that. क्या होता क्या है. सबसे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल कैसे हो गया वो सबसे इम्पोर्टेंट. ऐसे हो गया सबसे इम्पोर्टेंट. सबसे अच्छी होमोजेनिटी आती है उससे. तो होमोजेनिटी मेजर कैसे करोगे, जीन इंडेक्स से करोगे. जीन इंडेक्स क्या होता है, ये होता है. जस्ट इन अ मोमेंट कमिंग, अभिलाषा, कमिंग ऑन टू दैट. तो अगर मैं ये नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं अपने एल्गोरिथम को नहीं बताता हूँ कुछ भी कि होमोजेनिटी किस मेजर से देखनी है, तो इट विल टेक इट एज जेनी इंडेक्स और उसके हिसाब से वो स्प्लिट करता जाएगा. क्या कुछ और भी हो सकता है? यस, हो सकता है, जो हमने बात की भी थी. एंट्रोपी हो सकता है, और एंट्रोपी से डिराइव होता है इंफॉर्मेशन गेन. एंट्रोपी क्या होता है, मेजर ऑफ रैंडमनेस. यार यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा था और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर उसकी कुछ एंट्रोपी है. जस्ट मान लेते हैं कि एंट्रोपी है E1 या E बिफोर. स्प्लिट होने से पहले उसकी एंट्रोपी इतनी थी. तो स्प्लिट होने के बाद ये हुआ E1, इस चंक में इतनी एंट्रोपी है, इस चंक में इतनी एंट्रोपी है. तो मैं क्या चाहूँगा, एंट्रोपी इज जस्ट अपोजिट अपोजिट ऑफ होमोजेनिटी. एंट्रोपी कम होती चली जानी चाहिए. यही तो बात हुई. अरे यही तो बात हुई. इसका मतलब जो स्प्लिट से पहले एंट्रोपी थी, इट शुड बी हायर देन जो बाद में है. ये वैल्यू कम हो जानी चाहिए, E1 प्लस E2. सही बात है. कंबाइंड एंट्रोपी जो भी आएगी, E1 E2 नहीं, E1 प्लस E2 नहीं बोलेंगे, जस्ट समझने के लिए लिख दिया था मैंने. तो लिटरली ऐड नहीं कर रहे, वो तो वहां भी नहीं कर रहे थे. आओ देखते हैं. तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी को कैसे मेजर करेंगे, क्या एंट्रोपी का भी कुछ फार्मूला होता है? हाँ होता है. फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी इज दिस. जैसे समेशन ऑफ पी आई हो रहा था वहां पर, पी आई स्क्वायर. तो हेयर इट इज, यहाँ पर जे से डिनोट किया है, आई से हमेशा कंफ्यूजन ना हो. सो हेयर एंट्रोपी इज कैलकुलेटेड एज, इट इज विद नेगेटिव साइन बिकॉज इट इज समथिंग नेगेटिव थिंग. इसका होना अच्छी बात नहीं है. अपोजिट है ना होमोजेनिटी के, तो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. सो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है लाइक वहां पर पी आई का स्क्वायर होता था, यहाँ पर समझ लो उसको पी आई इंटू लॉग ऑफ पी आई ऑन बेस ऑफ 2. और इसी तरह से हर चंक का ऐड 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 करते चले जाएं, तो एंट्रोपी कैलकुलेशन हो जाए. इफ यू विश यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और मे बी कहीं नोट कर लो जल्दी से, अगर करना है एंट्रोपी का फॉर्मूला, और मिल जाएगा वो तो, कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी देख लो. ठीक है, बढ़िया. ये करके देखेंगे आप अपने आप जरा, जैसे जिन इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे थे अभी यहाँ पर, जरा एंट्रोपी कैलकुलेट कर लोगे, जरा करके बताना. एज से स्प्लिट किया तो एंट्रोपी कितनी आती है, और जेंडर से स्प्लिट किया तो एंट्रोपी कितनी आती है. एंड एंट्रोपी इज इनवर्स ऑफ होमोजेनिटी, समझ गए. तो जिन इंडेक्स जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, एंट्रोपी जितनी कम हो उतना अच्छा है. वो वाला अच्छा होता है जिससे एंट्रोपी कम आ जाए. बताना जरा कैलकुलेट करके जल्दी से, एज की और जेंडर की.
ठीक है, यू गॉट द आइडिया राइट। तो कैलकुलेशन इट इज जस्ट दैट, वहाँ पी आई स्क्वायर था, यहाँ हेयर इट इज पी आई इंटू log on base 2 of pi। तो नथिंग ट्रिकी, अगेन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर मैनुअल कैलकुलेशन करनी होगी तो थोड़ा सा टाइम ही लगेगा तुम्हें, बट कर सकते हैं। ले पटक भी दिया उसने आंसर, मोनिका ने। चलिए ठीक है, लेट्स सी, क्या हम चेंज करते हैं तो कैसा कर सकते हैं। एल्गोरिदम में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। ये सब कहानी हमने क्यों शुरू की थी, बिकॉज मैं कहीं पे आ रहा था, हमने क्या देखा था, मैक्स डेप्थ, मिन स्प्लिट, मिन बकेट, तीनों ही तरीके तो ठीक हैं, लेकिन तीनों में डिसीजन आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी एक्सपर्ट के डेटा देख करके और यू नो अमाउंट ऑफ डेटा एंड द डेप्थ ऑफ डिसीजन ट्री, ये सब देख करके तुम्हें जजमेंट हो जाए कि क्या ये रखना है, यू रियली डोंट हैव राइट वैल्यू, यू कैन ओनली हिट एंड ट्राई। इसके अलावा मैंने बताया था देयर इज सीपी पैरामीटर। ये सीपी पैरामीटर क्या कहता है, दिस सीपी पैरामीटर इज फॉर, मैंने बोला था दिस इज अ स्पेशल काइंड। ये सीपी पैरामीटर, इफ आई एम मेंशनिंग इट लाइक सीपी पैरामीटर 0.085, so what does it mean exactly is, होमोजेनिटी की कहानी समझ आई ना। सपोज इस स्प्लिट से मेरे को होमोजेनिटी मेजर आया कुछ तो, और मैंने अभी जैसे देखा था, सपोज आपका जिने इंडेक्स या जो भी है जिससे भी आप मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जिने इंडेक्स ही रखते हैं आप, सपोज योर होमोजेनिटी हैज कम अप टू 80%, नॉट 80, 80 इज वे टू मच, परसेंटेज में बात कर रहा हूँ बिकॉज कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, सीपी विल वर्क इन परसेंटेज। सपोज इट कम्स टू से 70%, 0.70, तो हमारा इंटेंशन क्या था जी, अगले स्टेप में ये होमोजेनिटी इंक्रीज हो जानी चाहिए, यस और नो। पहला स्प्लिट हम कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी होमोजेनिटी आ जाए, 1 आ जाए, परफेक्ट क्लासिफिकेशन हो जाए, वो तो होता नहीं, तो जितनी हो उतनी तो लाए, तो सपोज इतना हो गया राइट। अगले स्प्लिट में हमारी इंटेंशन क्या होगी कि ये इंक्रीज हो जाए, जितनी आ गई उतनी तो आ गई, इससे इंक्रीज होनी चाहिए, तो सपोज ये 80% पहुंच जाए, बहुत अच्छी बात है, इससे अगले स्प्लिट में और अच्छी हो जानी चाहिए, तो कितनी अच्छी हो जानी चाहिए, सपोज ये कितनी हुई, पहले स्प्लिट में 70% थी, दूसरा स्प्लिट किया 80% हो गई, तीसरा स्प्लिट किया ये हो गई, कितनी हो गई 80.5%, यानी कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे होमोजेनिटी में, कितना इंक्रीज हुआ है, %0.5, फ्रैक्शन में लिखूं तो 0.005, ठीक है, परसेंटेज में लिखूं तो 0.5%, तो सीपी मेरा वही काम करता है, द कॉम्प्लेक्सिटी पैरामीटर, इसीलिए उसको कभी कभी कॉस्ट भी बोल देते हैं लोग, एक्चुअली कॉस्ट नहीं होता, सी डज नॉट स्टैंड फॉर कॉस्ट, पर लोग बोल देते हैं जल्दीबाजी में। मैं कह रहा हूं इस पार्टीशनिंग की, ये कर तो दिया तुमने पार्टीशन, इसकी कॉस्ट क्या है, इज इट वर्थ इट, थिंक अबाउट इट, इज इट वर्थ इट कि इतनी होमोजेनिटी और इंक्रीज, कितनी होमोजेनिटी इंक्रीज हुई है, ये ज्यादा से ज्यादा कितना हुआ होगा कि या तो एक यस, यहाँ 50 यस में से एक निकल के उधर चला गया होगा ज्यादा से ज्यादा, और वाइस वर्सा, 50 9 थे मिक्स एंड मैच में, उनमें से एक इधर आ गया, तो थोड़ी सी होमोजेनिटी में डिफरेंस दिखा, इज इट वर्थ इट।
इज इट रियली वर्थ इट? क्या आप एक स्टेप नीचे चले जाओ, एक एक्स्ट्रा डेप्थ पे चले जाओ, एंड माइंड यू इससे आगे वालों में और खराब ही होने वाला है मामला। यहाँ पे 0.5% आई थी, आगे हाफ भी नहीं आएगी, क्योंकि बेस्ट होमोजेनिटी तो वो ले चुका। अरे यही बेस्ट थी, तभी तो ये वाला स्प्लिट कर रहा है। इससे अच्छी आ रही होती तो उससे करता, यानी इससे अच्छी तो नहीं आ रही आगे, इससे खराब ही आएंगे आगे। So it is only going to go unnecessarily. Got the idea? समझ गया आइडिया? सीपी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी पैरामीटर, कि कॉम्प्लेक्सिटी इससे ज़्यादा होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वाकई इज इट वर्थ इट? सो सीपी बाय फार, सीपी इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वन एंड द मोस्ट लॉजिकल वन जो पैरामीटर आप दे सकते हैं। तो मैं वही मेंशन कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, 0.05। अगर 5% भी चेंज नहीं आ रहा है होमोजेनिटी में तो ऐसे स्प्लिट मत करो। यस और नो? ठीक कह रहा हूँ मैं बिल्कुल। अगर 5% भी चेंज नहीं आ रहा तो क्या करना है फिर? मत करो। तो मैंने ऐसा मॉडल बनाया। लेट्स सी द पीआरपी ऑफ दिस एंड व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू सी? ज्यादा ही छोटा हो गया क्या? ज्यादा ही छोटा हो गया क्या? Yes, again, actually I am demanding way too much. Way too much in the sense, you have already seen Gini index varies in points. Yes or no? तो इतना समझ आता है कि अगर 0.5% या 1% की बात हो रही है तो शायद इतना मेरे को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, I can keep it 2%, 3%, I can keep it to some logical value. राइट, 5% आई थिंक इट इज़ वे टू मच डिमांडिंग, तो ज़्यादा ही छोटा हो गया। एंड अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, बिकॉज वी हैव केप्ट एल्गोरिथम जल्दी से रन हो जाए इसलिए मैंने छोटा ही डेटा रखा था। सो दिस डेटा इज़ वे टू स्मॉल, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। डेटा ऑलरेडी छोटा है तो डिसीजन ट्री पहले ही छोटा बनाया हमारा। देख रहे हो ना, इट इज़ नॉट डिसीजन ट्री गोइंग अप टू 20 लेंथ, नहीं तो ऐसे भी देखोगे आप डिसीजन ट्री बन रहे होंगे। फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट 2%। सो 2% से हम कर रहे हैं, पहले ही काफ़ी छोटा है तो इससे ज़्यादा छोटा नहीं करते। Let's see this time. Is there any change? डिफ़ॉल्ट डिसीजन ट्री कुछ ऐसा था। पे अटेंशन, क्या कुछ लेवल्स चेंज हो जाते हैं? आई एम कीपिंग इट से 3%, तो क्या कुछ लेवल्स चेंज हो जाते हैं? काफ़ी लेवल्स चेंज हो जाते हैं। आपका डिसीजन ट्री पहले से काफ़ी सिंपल बना है, अभी उतना कॉम्प्लेक्स डिसीजन ट्री नहीं है।
डिफ़ॉल्ट ये था, ऐसा था। 3 पे बना के देखा अभी। सी इन अ वे मैं भी थोड़ा सा हिट एंड ट्राई कर रहा था। फॉर नाउ लेट्स कीप इट 2% एंड सी 2% करते हैं तो भी मेरा डिसएंट्री ओके, थोड़ा सा सिंपल तो हुआ है पहले से। आई कैन रेस्ट एश्योर कि अब अननेसेसरी स्प्लिट तो नहीं हो रहे होंगे। 2% इज़ अ डिसेंट लेवल। 2% से भी कम अगर होमोजेनिटी मेजर जा रहा है, आई मीन द इंक्रीमेंट इन होमोजेनिटी मेजर इज नॉट इवन 2%, तो मैं कह रहा हूँ इससे आगे जाने का फायदा नहीं है। लेट्स सी प्रेडिक्शन। So prediction of SD is this, and summary I see summary of second column of this prediction. It is this much. So median is 0.2, mean is 0.42. So I think 0.3 can be a safe choice. ठीक है, 0.3 कट ऑफ ले लिया मैंने। ये तो सब कर रखा है आप लोगों ने, इसमें तो कोई नथिंग सरप्राइजिंग हियर है ना। ऑल गुड। मैं जस्ट रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ जल्दी से। इट इज़ ऑलरेडी टाइम आई नो, बट रेस्ट एश्योर मुझे ज़्यादा जल्दी है तुमसे, बट फिर भी दिखा देना चाहता हूँ। एंड कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स फाइनली। What do we have as confidence matrix? It is saying sensitivity is 80%, specificity is 89%. यानी इसका मतलब आपने सारे फंडे आजमा लिए। समरी देखा था, समरी में मीन और मीडियन का मिड पॉइंट लेकर देख लिया। एक बार काम कर गया था, अब की बार नहीं कर रहा। हाँ नहीं कर रहा। अभी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में गैप है। सेंसिटिविटी कम है स्पेसिफिसिटी से, यानी कट ऑफ नीचे जानी चाहिए। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हिट एंड ट्राई करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। 0.28 पे ट्राई करते हैं। So sensitivity is 88.6, specificity is 89 point something. So it is almost a balance of 87% sensitivity and 89% specificity. I think it is decent enough. और क्या देखा आपने? Something noteworthy? The noteworthy thing is कि आपका जो अनलिमिटेड डेप्थ तक गया था डिसएंट्री, उसकी भी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी इतने ही थे लगभग। म्हणजे you have not compromised on accuracy now. Your decision tree is equally capable. पहले से छोटा बना है, so now it is a simpler tree. ओवरफिट नहीं हुआ है उस लेवल तक, and still it is giving similar results. Yes or no? So with this I wind up the session for today. ठीक है, कल हम देखते हैं आइरिस डेटा सेट पे डिसीजन ट्री रन करके, एंड along with that we will learn a new algorithm which is the last algorithm of our session, that is LDA. तो आपके 4 मॉडल our session के पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट वीकेंड onwards we will graduate to Python session. वहाँ पर आपके लिए कुछ नए मॉडल्स वेट कर रहे हैं। You will see some new tricks there. ठीक है जी। So turning off recording now. I can stay for a couple minutes if there is any question. But other than that, I am done and I have to rush up to another session. If there is any question, please shoot. If no further question, you are free to leave. Bye bye. Take care. We'll connect tomorrow, same time. Very welcome everybody.